चलो पहले होमवर्क चेक कर लो पेटी कैश का। आया होमवर्क? बड़ा सा check the homework of petty cash book, fifth problem. Right or wrong? होमवर्क है इंडिविजुअल कॉलम टोटल देख लो। आपका टेलीफोन कॉलम is 200, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी is 455, कैरेज एंड कार्टेज is 550, स्टाफ वेलफेयर is 150, traveling and conveyance is 50, repairs and renewals are 830, correct? Advertisement is 500, sundry expenses are 230, and ledger is 680. Total of payments is 3645. Total of receipts is 6500. 6500 minus 3645 will give you 2855. 2855 opening है, उसको किसके साथ कंपेयर करने का? 6250 के साथ. So you receive again two bank में 2605. 2605 3395 क्या है? Two bank. 6250 minus 2855 3395. 3395 आएगा. Two bank will be 3395. I think you compared with 6000. 6250. Float was 6250. Okay? 3395. Alright, now couple of sums were left out of petty cash book. Let's discuss them फटाफट. petty cash book का I think sum number एक तो था 3 और एक और था I think it was 11 yeah. 3 and 11 just discuss करते हैं. Both are for homework. 3 and 11. See, on 1st Jan 2007 उधर एक करेक्शन करना. On 1st Jan 2011 received rupees 1350 equal to rupees 3000. Received 1350 equal to 3000. मिला? Received rupees 1350 equal to rupees 3000. तो मतलब 1350 मिला तब जाके 3000 बना. उसके पास ऑलरेडी कितना था? 1650 ऑलरेडी था. इज इट क्लियर? उसको 1350 मिला और 3000 बन गया. तो टू बैलेंस आएगा 1650 एंड टू कैश आएगा 1350. इज इट क्लियर? गॉट इट? देन फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ द मंथ. फोर्टनाइट मतलब 15 डेज. याद है मैंने बोला था पेटी कैश बुक कैन बी मेड ऑन वीकली, 15 डे बेसिस और मंथली बेसिस. ये 15 दिन है तो कुछ नहीं है, सेम पेटी कैश बुक है. खाली क्लोजिंग डेट आपका क्या होगा? 15 और ओपनिंग क्या होगा? 16. ओके, वही खाली ध्यान देना है. बाकी तो नॉर्मल है. पे फॉर एडवर्टाइजमेंट कौन से कॉलम में जाएगा? एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी. कैरेज एंड कार्टेज तो कैरेज एंड कार्टेज. टेलीफोन एक्सपेंस टेलीफोन. बॉट कप्स एंड सॉसर्स दैट इज सन्ड्री एक्सपेंस. गिवन एडवांस टू पेमेंट दैट इज लेजर. Received 250 from sale of old magazine. Amount received to sale of magazine या to sundry income लिख सकते हो. Paid on account is share ledger. Straight sum है. Homework. सर 12th वाला सो दो. 12th वाला received 250 from sale amount पैसा. लेकिन ध्यान क्या रखना है? पेड ऑन अकाउंट ledger. Received है ना तो पैसा आया. समझ में आया सबको? और what I was saying is खाली डेट का ध्यान रखना. देखो 14 को खत्म हो रहा है ना, तो आप 15 को क्लोज करो. तो 15 को क्लोज करोगे 16 को होगा. एंड 11th सम वो भी होमवर्क है. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन एनालिटिकल पेटी कैश बुक. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हेड कैशियर 2700. You got a check, so that is amount received. Now was there any opening balance? That means this is the first month and that means this is your float 2700. Paid for pencil, import papers, that is printing and stationery. Paid for repairs and renewals, Uber bill of manager, traveling and conveyance, subscription of newspaper, sundry expense, refreshment to customer, staff welfare,
Ranjit in full settlement of his account. Refreshment to customers. Hodar takes customer as advertisement. No, So I this- asked this. What did it- Refreshments में डालना Put it under staff welfare, refreshment. हाँ, Refreshment and entertainment यहाँ पे staff welfare में डालो. Refreshment to customer, staff welfare. Okay. Paid to Ranjit in settlement of his account. Ledger. Then amount उसका 230 है, नीचे print हो गया. Ranjit वाला amount is 230. Paid to wages, casual labor, that is wages. Electricity bill, electricity, and paid for carriage. Carriage is what? Carriage and carriage पीछे भी है. Purchase of wooden chair. That is ledger asset. That is ledger. Sorted यहाँ तक? All of you understood? So two sums 3 and 11 they are for homework. Okay? 3 and 11 दो sums homework है आपके. Sir, wooden chair. Wooden chair is ledger. ये वाला मंथली था, पहला वाला आपका ये था अपना क्या बोलते हैं 15 डे वाला fortnight. तो 15 दिन वाला, एक वीक वाला और एक महीने वाला, तीन चीज का ध्यान रखना. ओके. नाउ ऑल ऑफ यू टेक दिस शीट, एक लेके पास करो. टेक वन, पास द रेस्ट. एक्सपायर कर दे लो. पास देखो अभी इसमें पहले तो एकदम लास्ट साइड ले लो. पेटी कैश बुक का मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है. कैन यू सी दैट? पेटी कैश बुक का पॉइंट वहां पे मेंशन्ड है. इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है कौन सा आइटम कौन से कॉलम में जाता है तो पूरा समराइज करके सब आइटम्स दिया जो मोटा मोटी आ सकता है प्रॉब्लम. एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना है. क्या क्या लिखा हुआ दिख रहा है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में पेंसिल, फाइन, रेवेन्यू स्टैम्प, एनवेलप्स, कार्बन पेपर, सेफ्टी पिंस, रबर, बॉल पेन, प्रिंटिंग लेबल्स, प्रिंटेड लेटर हेड्स. खाली इसमें करेक्शन है, प्रिंटेड लेबल्स इज एडवर्टाइज्ड. प्रिंटेड लेबल्स जो दिए ना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेबल्स आर एडवर्टाइज. प्रिंटेड लेबल्स आर एडवर्टाइजमेंट. ओके, बाकी सब नॉर्मल है. ट्रैवलिंग कन्वेंस का दिया है, एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी का दिया हुआ है. ओके, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कैरेज एंड कार्टेज, स्टाफ वेलफेयर, रिफ्रेशमेंट. एंड यू सी दैट वेजेस, सन्ड्री आइटम्स भी मेंशन्ड है पूरा. ओके, सन्ड्री आइटम्स में खाली वो जो पिकनिक ऑफ वर्कर है ना उसको स्टाफ वेलफेयर में डालना है, इसके लिए उसको अंडरलाइन किया है. पिकनिक ऑफ वर्कर इज स्टाफ वेलफेयर. ओके, लेजर इज अलग से दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है. ओके, खाली दो आइटम्स का मार्किंग कर लेना. एक तो आपका प्रिंटेड लेबल्स, लेबल्स विल गो टू एडवर्टाइजमेंट एंड पिकनिक ऑफ वर्कर्स ऑलरेडी अंडरलाइन है, उसको डाल देना स्टाफ वेलफेयर. बाकी सब मेंशन्ड है. एक बार रिवाइज कर देना इनको एग्जाम से पहले पेटी कैश को, तो हो जाएगा. See, today what we are going to do is source documents chapter. Okay, what are these source documents? So all of you first take out standard textbook and keep. See to it at least you have one on a bench. Sure, you're right. ये ठंडा थी भाई. इसमें स्टडी तो नो ये मेरी आ जाओ तो शेयर करो ना. कब फोटो काढ़ी है उधर दो है. Now see standard textbook open करके रखो. All of you have at least one on a bench. सबके पास है. अब सुनो ध्यान से. See what are source documents? Source documents are nothing but मैंने आपको बताया था यार बुक कीपिंग में हम लोग करते हैं क्या? वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. करेक्ट. अब ट्रांजैक्शंस हवा में से तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते. कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले क्या बनना चाहिए? उसका प्रूफ. कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए. बराबर. तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस.
ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस जब आप करते हो कैश चेक से, तो इनका अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में अभी सब सिस्टम ऑनलाइन सेटअप किया हुआ है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ये ऑटोमेटिकली बन के रेडी हो जाता है, आपको खाली देखना होता है ऑनलाइन। सो ऑफलाइन अभी भी काफी बिजनेसेस करते रहते हैं, कैश का चलन है, चेक का चलन है, तो हर एक बिजनेस हैज टू मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। वो डॉक्यूमेंट्स अगर हुए तो ही ट्रांजैक्शन वैलिड गिना जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। तो हम एक स्टोरी देखते हैं, ओके, और स्टोरी के हिसाब से वी विल सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हाउ डू दे लुक लाइक। और आपको एग्जाम में एनएमडीबाई को शायद नहीं है बनाने के लिए, बट नॉलेज के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पोदार हैज दिस क्वेश्चन एंड इवन सोमैया एंड एसआईएस सबको होता है, एसआईएस को नहीं है, सोमैया को। ओके, नाउ शुरुआत कहां से होती है? तो पहले बायर जो है वो इंक्वायरी लेटर भेजता है। ओके, कोई भी आपको माल खरीदना होगा ना, ट्रेड करनी होगी, तो बायर विल सेंड एन इंक्वायरी लेटर टू द सेलर। ये अगर आपको आज की तारीख में ऑनलाइन करना है तो इंडिया मार्ट का साइट ओपन करके देख लेना एक बार, इंडिया मार्ट का साइट या इंडिया मार्ट का ऐप। इंडिया मार्ट इज लाइक पैन इंडिया होलसेलर, होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो घड़ी घड़ी जाकर दुकानों की धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधा इंडिया मार्ट पे जाओ, अपने बिजनेस को रजिस्टर करो, ऑर्डर प्लेस करो, सीधा आपके घर पे माल आ जाएगा, वहां से आप धंधा चालू कर सकते हो। कुछ भी चाहिए आपको, होलसेल प्राइस, anything you want to trade, anything, chemicals, machines, equipments, instruments, clothes, stationery, confectionery, खाने पीने के items, anything, all suppliers are, it's like Amazon is for retailer, India Mart is for wholesalers, businessman के लिए। तो आपको लेकिन बल्क में ऑर्डर प्लेस करना है, उधर क्वांटिटीज भी लिखा होता है, आपको मिनिमम 10 क्वांटिटी, मिनिमम 50 क्वांटिटी, मिनिमम 100 क्वांटिटी से ऑर्डर करने पड़ेंगे। रेटिंग्स भी दिए होते हैं सेलर के, उसके हिसाब से आप क्लिक करके जो सेलर आपको पसंद है, मतलब उसका रेटिंग के हिसाब से देखो, क्वालिटी, ऑर्डर करो, माल आ जाएगा। सो उधर लिखा होता है इंक्वायरी। तो पहले बायर जो है सेलर के साथ इंक्वायरी प्लेस करता है, बायर जो है सेलर के साथ इंक्वायरी प्लेस करता है कि आपके पास ये माल है या नहीं। फिर सेलर उसको अपने ब्रोशर्स, कैटलॉग्स भेजता है। क्या भेजता है? ब्रोशर्स या कैटलॉग्स, या उसका जो भी अवेलेबल प्राइस लिस्ट है, प्रोस्पेक्टस है, वो सब बेचता है। हाँ देखो हमारे पास ये टाइप का है, तो कुछ पेंट है, मेरे को फलाना पेंट चाहिए, तो मैं पेंट डीलर को इंक्वायरी लेटर भेज दूंगा। पेंट वाला मेरे को उसका ब्रोशर भेजा, हमारे पास ये कलर है, ये रेंज है, ये प्राइस रेंज है, इतना क्वालिटी का ये माल पड़ा है, तो ब्रोशर कैटलॉग भेजेगा। उस ब्रोशर कैटलॉग को देख के बायर क्या करता है? प्लेसेस एन ऑर्डर। तो ऑर्डर प्लेस्ड आपने देखा होगा कभी कभी ट्रांजैक्शन में। ओके, यहां पे कोई डॉक्यूमेंट की खास जरूरत पड़ती नहीं है। ऑर्डर लेटर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। ऑर्डर लेटर क्या है? खाली वो एक इंक्वायरी के बाद एक बोलता है कंफर्मेशन कि भाई मेरे को ये माल भेजो, लेकिन ऑर्डर लेटर डजंट मीन कि आपने माल खरीदा है, कैंसिल भी हो सकता है। सो प्लेस्ड एन ऑर्डर, बायर प्लेसेस एन ऑर्डर विद द सेलर, और उसके बेसिस पे सेलर उसको क्या करता है? माल भेजता है, बराबर है। तो सेंड्स द गुड्स या बायर रिसीव्स द गुड्स। तो ये जब माल बेचा या खरीदा जाता है, दिस इज व्हाट इज सेल या फिर परचेज। इसके टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट बनाया जाता है? इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। बिल का नाम दूसरा दिया हुआ है टैक्स इनवॉइस, या फिर इसको क्रेडिट मेमो भी कहा जाता है। दीज आर ऑल वन एंड द सेम। तो ये कौन बनाएगा? सेलर। सेलर जब भी सेल करेगा गुड्स बायर को, तब उसके साथ एक बिल बना के सेंड कर देता है। ओके, कि ये आपने पेंट का डब्बा खरीदा है, ये बर्जर का, ये एशियन पेंट्स का, ये कलर का, इतना क्वांटिटी है, एंड ऑल दोज डिटेल्स विल पुट इट इन दैट बिल एंड सेंड इट टू यू। तो फॉर द सेलर दिस बिल इज कॉल्ड एज आउटवर्ड इनवॉइस, एंड फॉर बायर दिस बिल इज कॉल्ड एज इनवर्ड इनवॉइस। यहां तक का स्टोरी क्लियर? तो सेलर क्या बेचता है? आउटवर्ड इनवॉइस, और बायर क्या रिसीव करता है? इनवर्ड इनवॉइस। अब ऑल ऑफ यू टेक आउट योर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, इट्स देयर, टैक्स इनवॉइस 46, एक पेज 46।
Page 46 of your standard textbook. You will find a pro forma of tax invoice. Can you see that? What is this tax invoice? Tax invoice का मतलब होता है invoice या फिर bill. दिख रहा है आपको? ऐसा इनवॉइस आपको अभी नहीं तो कभी कभी सेकेंड यूनिट टेस्ट में बनाने को पूछ सकते हैं, तो देख लेना एक बार अच्छे से, और अगर नहीं भी पूछा तो भी नॉलेज के लिए काफी काम का है, क्योंकि अगर सीए वीए करोगे आगे जाके या सीए आपके काम में आएगा, सीए का जरूरत पड़ने ही वाला है, तो वो बंदा आके ऑडिट करता है. ऑडिट मतलब चेकिंग ऑफ अकाउंट्स. तो मेन थिंग ऑडिट में यही होता है. क्या होता है? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. वाउचिंग मतलब ये सब डॉक्यूमेंट्स है, ये सब डॉक्यूमेंट बिजनेस ने बनाए हैं, उसको ट्रांजैक्शंस के साथ मैच किया जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, कि फेक ट्रांजैक्शंस तो नहीं है, डॉक्यूमेंट के बिना आपने कर दिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स है लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाई दे रहे बुक में, ऐसा भी हो सकता है. आपने इनकम हाइड करने के लिए वाउचर्स तो बना के रखे हैं लेकिन बुक में एंट्रीज नहीं मारी है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो ये चेक किया जाता है कि आपके बुक्स में जो एंट्री की है, जर्नल लेजर पोस्टिंग की है, वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से हुआ है कि नहीं. दैट इज व्हाट इज मेन वर्क ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी ओके, ऑडिट. और उसके बाद वो टैक्स लायबिलिटी वगैरह ढूंढता है, कितना टैक्स भरने का आएगा गवर्नमेंट को. सो टैक्स इनवॉइस का मतलब टैक्स से कुछ लेना देना नहीं है, इट इज इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस मतलब इनवॉइस, वो जीएसटी के साथ वाला होता है, इसके लिए उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं. तो ये इनवॉइस है, कौन बना के भेज रहा है? सेलर बना के भेज रहा है बायर को. तो ऊपर दिख रहा है आपको सुनील जनरल स्टोर्स, उधर पेंसिल से लिख लो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. सुनील जनरल स्टोर्स, उधर लिखो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. पेंसिल से एरो करके लिखो. ऊपर क्या लिखते हो आप? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. ओके. जनरली आपको डिटेल्स नहीं दिया है, आपको बोलता है कि प्रिपेयर विद इमेजिनरी डिटेल. तो कुछ भी एक आपको पता होगा किसी सेलर का नाम इमेजिनरी बना के आप लिख सकते हैं, भी नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर. ओके. ठीक है. सुनील जनरल स्टोर, शॉप नंबर 5, लक्ष्मी रोड, पुणे. फिर आपने देखा होगा बिल पे एक नंबर होता है, सीरियल नंबर. ये कैश में हो रहा है तो कैश बिल नंबर, क्रेडिट पे हो रहा है तो इनवॉइस नंबर. तो कैश बिल स्लैश लिखो इनवॉइस नंबर. कैश बिल के बाजू में लिख दो इनवॉइस नंबर. कैश बिल या फिर इनवॉइस नंबर, वो 3-4 डिजिट का उसका रजिस्टर्ड नंबर रहता है जो भी है. डेट आ गया राइट हैंड साइड पे. जीएसटी आईएन पता है क्या होता है? जीएसटी नंबर 15 डिजिट का रहता है, अल्फा न्यूमेरिक रहता है, वो कुछ भी अल्फाबेट और नंबर्स को मिला के आप बना सकते हो. 15 डिजिट का रहता है. ठीक है. वह मैंने आपको जो शीट दिया उसमें बनाया हुआ है, बाद में वो डिस्कस करते हैं. नेम, कस्टमर्स नेम, कैन यू सी दैट? तो उधर लिखने का नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, वो जो 2 लाइन दिया हुआ है उधर लिखने का नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर. अभी ये ना एक डेमो है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक शॉप का बिल ऐसा ही हो. ओके. आपने बहुत सारे बिल्स देखे ना, खरीदी करने जाते हो, मॉल्स में जाते हो, डीमार्ट, बिग बाजार में जाते हो, रिटेल में जाते हो, अलग अलग बिल्स मिलते हैं. तो बिल का कोई ऐसा एकदम थप्पा मारेगा हाँ ऐसे ही होना चाहिए बिल, नहीं. इट्स अ प्रूफ, हमने माल बेचा. मेन थिंग उसमें माल का डिटेल होना चाहिए. बाकी तो आप बायर का नाम लिखो, कभी बायर का नाम और एड्रेस लिखो, या सेलर का खाली नाम मेंशन करो, एड्रेस मत करो, दैट्स ऑल फाइन. इज इट क्लियर? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम लोग कर रहे हैं. तो एग्जाम में आए तो इसके हिसाब से बनाना है. ओके. बॉक्स में देखो आपके पास है सीरियल नंबर, उधर डिटेल ऑफ गुड्स होता है. सीरियल नंबर दिखा. पर्टिकुलर्स में आपको डिटेल नाम लिखना है कि जैसे आपने रेड कलर पेंट, ड्यूलक्स वेलवेट टच, या नेरोलैक कंसाई, या फिर एशियन पेंट्स का जो माल ऑर्डर किया है वो पर्टिकुलर्स में आ जाएगा. एचएसएन नंबर होता है हार्मोनाइज्ड नॉमेनक्लेचर कोड, वो आपको ऑनलाइन देखना है. आपके गुड्स को कौन सा कोड अप्लाई होगा वो कोड यहाँ पे लिख देने का, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. आपके कमोडिटी पे कौन सा जीएसटी, कौन सा रेट, क्या अप्लाई होने वाला है, उसको एचएसएन कोड बोलते हैं. तो सारे गुड्स का अलग से एचएसएन कोड दिया हुआ है, कंप्यूटर से लेके, लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब आपका जो भी सर्विसेज है उसके लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है, गुड्स के लिए एचएसएन कोड होता है. तो जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर का कोड आपको लिख देना है आपके गुड्स को जो अप्लाई होता है. इसमें आपको ये ऑनलाइन चेक नहीं करना है, आपको एग्जाम में अगर बनाने को है रैंडमली कोई भी 4 से 6 डिजिट का नंबर लिख सकते हो. रैंडमली 4 to 6 डिजिट नंबर यू कैन राइट. रेट तो पता है आपको जो रेट चल रहा है पर यूनिट. क्वांटिटी कितना यूनिट्स आपने मंगवाया. टैक्सेबल अमाउंट मतलब क्वांटिटी इनटू रेट. समझो 5 डब्बे हैं
1000 रुपए के तो 5000, 10 डब्बे है 2000 के तो 20000। क्वांटिटी टू रेट प्री टैक्स बिफोर जीएसटी, फिर उस पर जीएसटी ऐड होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड होता है, जो भी अमाउंट है आपका, और उस पर आपको मिलता है फाइनल अमाउंट, टोटल अमाउंट, दिख रहा है। सो टैक्सेबल अमाउंट क्या आपका बिफोर जीएसटी वाला, फिर जीएसटी ऐड होकर फाइनल टोटल। रुपीज इन वर्ड्स नीचे लिखना है, जो भी सब टोटल आया आपका। राइट हैंड साइड पे बैंक डिटेल्स दिखाई दे रही है, तो मतलब अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब आपने माल बेचा और ताबड़तोड़ चेक आ गया या कैश आ गया, तो कैश आया तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चेक आया ना, तो चेक का डिटेल वहां पे मेंशन करना होता है। कैन यू सी दैट? बैंक डिटेल, बैंक नेम, आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर। तो जो भी चेक का डिटेल्स है वो आप मेंशन कर दो। सिग्नेचर, ईएनओई। ईएनओई क्या होता है? एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ईएनओई, ई एंड ओई स्टैंड्स फॉर एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन पता है ना आपको? एक्सेप्शन मीन्स व्हाट? कोई रूल का कुछ अलग चीज। ओके, तो एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड का मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट बंदा ह्यूमन बीइंग ही बनाया है, मतलब बन गया तो सबको, अभी कोई फिगर में मिस्टेक कर दी, 1 लाख रख दिया तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि 1 लाख। एरर्स एंड ओमिशन है तो उसको इंडिविजुअल केसेस पे देखा जाएगा, मिस्टेक हो सकता है, रेक्टिफाई कर सकते हो आप। ऐसा बन गया तो मतलब जान पे नहीं आने वाला है ऐसा। तो एरर्स एंड ओमिशंस आर ट्रीटेड ऑन एक्सेप्शनल। ये सारे डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है, सब पे लिखा जाता है। आप भी देखो कभी घर पे जाके कोई भी बिल होगा ना, उसको छोटे हैंडराइटिंग में नीचे लिखा हो एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, ईएनओई। ओके, होता ही है इसमें, अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। अभी बस इतना ही बनाने का, और नीचे सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर होना चाहिए? हु मेक्स इट? सेलर मेक्स इट। तो हु साइन यू शुड हैव? सेलर्स, सेल्स मैनेजर का या फिर सेलर का साइन। सो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें? सबसे पहला शुरुआत कहां से करोगे आप? नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर, सेलर से शुरू करने का। फिर एक नंबर आएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा। ओके, फिर जीएसटी आएगा, जीएसटी का रैंडम 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद आएगा आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर, बड़ा सा बॉक्स है जहाँ पे आपको डिटेल ऑफ गुड्स दिखाना है। वो कहाँ से शुरू होगा? पहले सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर में डिटेल, फिर क्वांटिटी, एचएसएन कोड, फिर क्वांटिटी, रेट और प्री टैक्स का जीएसटी ऐड करके पोस्ट समझ में। फिर रुपीज इन वर्ड्स, बैंक डिटेल,